ठीक है. So hello guys, welcome to Study IQ. Okay, so we'll start in a minute. Let other people join in. Meanwhile, PPTs are already uploaded on the group. PPT और as well as Crux material, जो दो टाइप के मटेरियल हमारे जो मैं देता हूँ, that has been uploaded to this group. तो you can get the access to this PPT as well as the material from this particular group. Okay, एक दो मिनट थोड़ा वेट करेंगे. Let other people also join in. मीनवाइल अगर आपके कोई डाउट रहेंगे देन दैट यू कैन आस्क मी. ठीक है, सो एक मिनट रुकते एंड देयर आफ्टर विल स्टार्ट. तब तक अगर कोई डाउट रहेगा आपका, यू कैन टाइप इट आउट एंड वी कैन टेक दैट डाउट. ओके, यस, सो एनी डाउट इफ यू आर हैविंग गाइज देन जस्ट लेट मी नो. ओके, I hope I am visible as well as audible. Good evening to you all. ठीक है, so we'll start in a minute. Let other people join in. तब तक कोई डाउट अगर आपका रहेगा from the previous lecture, then that you can ask me. अभी तक तो बहुत गाड़ी आगे बढ़ चुकी है. Almost half of ancient India is over, right? तो आज today we are going to see the संगम age. तो संगम age के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे. बट अगर कोई डाउट रहेगा meanwhile, then that you can ask me guys. Okay. Good evening यार. Good evening to you all. Okay. Yes, so any doubt guys if you are having, then that doubt you can ask me. Okay, so चलो I guess no doubts are there. एक वैसे एक मिनट का टाइम लैग तो रहता ही है लाइव लेक्चर में, which I have already told you also before. तो अगर कोई डाउट रहेगा then you can just keep on typing. Meanwhile I'll move ahead. ठीक है, तो today we are going to start with this topic that is संगम एज, दैट इज डॉन ऑफ हिस्ट्री इन डीप साउथ. तो संगम एज की बात करेंगे आज. ओके, दिस वाज द टॉपिक. ओके, yes, okay, so aspect of material age in Satvahana is important. Then yes, Nahida, we have already discussed about the material culture of the सातवाहना एज, राइट. तो सातवाहना एज का जो मटेरियल कल्चर है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता ही है. नॉट ओनली सातवाहना बट आपको हर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में आपको ये करना पड़ेगा. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पर्टिकुलर अप्रोच ऑफ द हिस्ट्री बिफोर ऑल्सो. आप जब हिस्ट्री पढ़ती हो तो यू जस्ट पिकअप अ पर्टिकुलर ईरा एंड वंस यू पिकअप अ पर्टिकुलर ईरा, आपको उसमें क्या पढ़ना है, देन यू हैव टू स्टडी पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर. सो ईच एंड एवरी ईरा हैव देयर सर्टन एस्पेक्ट. तो सातवाहना में वंस वी हैव सीन द मटेरियल कल्चर, सो मटेरियल कल्चर मीन्स सर्टन इन्फॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी एंड सर्टन इन्फॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी. तो प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, राइट. सो यू कैन टेक इट इन बोथ द वेज एंड इट विल हेल्प यू इन बोथ द एस्पेक्ट. ओके, so let's start then guys. ठीक है, we'll move ahead. तो today we are going to see the history of the deep south. तो अभी यही वाला मैप है again and again. This is basically the post Mauryan वाला मैप, right? So post Mauryan age जो है, that post Mauryan age में we can clearly see this was the political division of our country. We started with this division 3 lectures back. Thereafter हम लोगों ने last lecture में सातवाहनास देखा. Today we are going to see छोला चेराज and Pandyas. That is basically the Sangam literature. So before going to the Sangam literature, NCERT is talking about the megalithic culture. And megalithic culture तो हमारे lecture में भी अभी तक नहीं हुआ था because we are going as per the NCERT. Now what is megalithic culture? Again we have to go back to our initial lectures. हमने discuss किया था that prehistorical phase is there. What is prehistorical phase? Then it is that phase of the humanity जहाँ पे लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था. So they have not left any written evidences for us. तो अगर written evidences उन्होंने नहीं छोड़े हैं तो everything we get to know about them is from their archaeological evidences only. तो ऐसे हमने ages देखेंगे, that is Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Chalcolithic. अब Chalcolithic age के बाद में North India में we are having 2 ages which we have discussed elaborately. One is called as a Bronze Age. Bronze Age is also basically the proto-historical age in India. तो प्रोटो हिस्टोरिकल एज मतलब बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो दिस वाज दैट एज और दैट फेस ऑफ द इंडियन हिस्ट्री जहाँ पे लोगों को पढ़ना लिखना तो आता था बट उनकी जो लिखावट है दैट इज द स्क्रिप्ट, ये हम लोगों को पढ़ने नहीं आती.
सो वी गेट टू नो अबाउट दिस पीपल फ्रॉम द अदर सिविलाइजेशनल सोर्सेस। हमने देखा था मेसोपोटामिया, सरगोन ऑफ अक्कड़, उनके सोर्सेस की वजह से हम लोगों को हड़प्पा की इंफॉर्मेशन मिली है। एंड ब्रॉन्ज एज इज बेसिकली फॉलोड बाय आयरन एज। तो आयरन एज जो है नॉर्थ में, दैट इज बेसिकली अ वैदिक एज। तो जो वैदिक एज है इसको आप आयरन एज भी बोलोगे नॉर्थ में, एंड दिस इज समथिंग कंसिडर्ड एज अ बिगिनिंग ऑफ द हिस्टोरिकल फेस इन आवर कंट्री। तो हिस्ट्री इंडिया की कहाँ से चालू होती है? तो वैदिक एज से चालू होती है, बिकॉज दिस पीपल हैव लेफ्ट अस द एविडेंसेस विच वी कैन easily read, write and easily understand also. तो this is something about north. But as far as south is concerned, then south में Chalcolithic के बाद we have directly got the megalithic age. megalithic age को south में iron age भी बोला जाता है। तो only bronze age is something that you can consider, जो सिर्फ north में था, south में नहीं था। और इसके रीजन भी हमने देखे थे, बिकॉज ब्रॉन्ज इज एन एलॉय। एलॉय बनाना है तो आपको क्या लगेगा? टिन लगेगा, एंड देयर आफ्टर फिर आपको कॉपर लगेगा। कॉपर तो साउथ में आपको मिल जाएगा, राजस्थान से आप साउथ में लेके आ सकते हो, बट टिन वॉज वेरी प्रेशियस कमोडिटी एट दैट टाइम, क्योंकि टिन मिलता था सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशिया से साउथ में, वो भी उस टाइम पे तो काफ़ी ही डिफिकल्ट चीज़ रही होगी। दैट्स वाई हम लोगों को साउथ में ब्रॉन्ज एज है वो नहीं मिलता है। तो नियोलिथिक चैल्कोलिथिक एमैल्गमेशन इन द साउथ हैज डायरेक्टली रिजल्टेड इनटू द क्रिएशन ऑफ द मेगालिथिक पीरियड। तो हम लोगों को मेगालिथिक पीरियड के बारे में पता है कुछ। तो मेगालिथिक पीरियड का एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न, देन आपको सिर्फ कुछ चीज़ें ही इसमें याद रखनी है। देन व्हाट आर दोज थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर? तो सबसे पहले तो यही है कि नॉर्थ में ब्रॉन्ज एज है, साउथ में ब्रॉन्ज एज नहीं है। देयर आफ्टर जो मेगालिथिक एज जो है उसको आप आयरन एज भी बोलोगे, बिकॉज मेगालिथिक जो है उनके बरियल पॉट्स में हम लोगों को आयरन के इक्विपमेंट मिले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका नाम मेगालिथ पड़ा है, तो हम लोगों ने पहले ही देखा था। पैलियोलिथ मतलब ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथ मतलब मिडल स्टोन एज, नियोलिथ मतलब न्यू स्टोन एज, चैल्कोलिथ मतलब क्या हुआ? कॉपर स्टोन एज। वैसे ही मेगालिथ, मेगा मतलब बड़ा, लिथ मतलब पत्थर। तो बिग बिग पत्थर जो है ये लोग अपने ग्रेव्स के ऊपर लगा के रखते थे। तो व्हाट आर दिस बिग बिग पत्थर या फिर बड़े बड़े पत्थर ऐसे कौन से वाले हैं जो इन्होंने अपने इसके ऊपर, दैट इज ग्रेव्स के ऊपर लगा के रखे हैं? तो ये कुछ ऐसे तरह के दिखेंगे। इंडिया में यूजुअली दो ही स्ट्रक्चर मिलते हैं। प्रीलिम्स में आपको ये दो ही स्ट्रक्चर याद रखना है। एक को आप बोलोगे महनीर एंड दूसरा है डॉल्मन। ये दो टाइप के पत्थर जो है हम लोगों को इनके ग्रेव्स के ऊपर मिले हैं। एंड देयर आफ्टर ग्रेव्स जो है जब हमने इसको एक्सकेवेट किया तो अब तभी हमें इनके बरियल प्रैक्टिसेस एंड सर्टन अदर एस्पेक्ट के बारे में पता चला। तो बरियल में इन लोगों ने बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ पॉटरी रखी थी। पॉटरी इज अगेन सिग्निफिकेंट बिकॉज पॉटरी से सोसाइटी के बारे में पता चलता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ द पॉटरी में हमें यहाँ भी ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी के ही एविडेंसेस मिले हैं। तो ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी हड़प्पा में भी मिलती थी, मेगालिथिक में भी मिलती थी। तो दिस इज अ क्वाइट यू कैन कंसिडर सिमिलैरिटी। हड़प्पा का जो एकदम डिक्लाइनिंग वाला फेज था समवेयर अराउंड 1800 से लेके 1300 BC तक का, ओके तो उसमें भी हम लोगों को ब्लैक एंड रेड वेयर के एविडेंसेस मिले हैं। एंड मेगालिथिक जो है वो यूजुअली कंसिडर किया जाता है 1000 से लेके 600 BC तक। ये वाला जो फेस है वो साउथ में चलता रहा था। तो बेसिकली ब्लैक एंड रेड वेयर हम लोगों को थ्रू आउट एंशिएंट इंडिया मिली है हड़प्पा के बाद में, एंड ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी हम लोगों को यहाँ पे भी मिली है। तो बस यही याद रखना है कि इट इज एन आयरन एज, देयर आफ्टर ब्लैक एंड रेड वेयर जो है ये पॉटरी हम लोगों को यहाँ पे मिली है। प्रीलिम्स में इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कुछ आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्रीकल्चर जो वो इन लोगों को पता नहीं था, पता था मतलब, बट ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते थे। ये हंटर्स फूड गैदरिंग इकोनॉमी पे ही यकीन रखते थे। एंड देयर आफ्टर ओके इनका जो बिगिनिंग है विच आई हैव टोल्ड यू कि 1000 से लेके समवेयर अराउंड 600 तक इनका मैच्योर फेज था, बट इनके एविडेंसेस हम लोगों को अप टू 100 BC तक भी मिले हैं। एंड देयर आफ्टर फिर ये जो मेगालिथिक फेस है इसी का अल्टीमेटली ट्रांजिशन हुआ था जो बिग किंगडम जो है साउथ के उनमें। तो ये ट्रांजिशन के बारे में भी हम लोगों को देखना है कि ये ट्रांजिशन एग्जैक्टली कैसे हुआ था। बट ये जो मेगालिथ है उसी का अल्टीमेटली ट्रांजिशन होना चालू हुआ था इन पोस्ट मौर्यन पीरियड। अशोकन इंस्क्रिप्शन में हमें ये किंगडम के नाम मिलते हैं, दैट इज छोलास, चेरास एंड पांड्यास। तो जो केरल पुत्रा है, केरल पुत्रा अशोका के इंस्क्रिप्शन में हमें मिला है, तो उसका हमने कंसिडर कर लिया कि दिस मस्ट बी चेरास। तो ये जो 3 नाम है जो हम लोगों को मिले हैं इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन, ये वाले नाम बेसिकली हम कंसिडर करते हैं कि ये उस टाइम पे साउथ में छोटी मोटी ट्राइब रहा होगी, बट लेटर ऑन ये बड़े किंगडम में कन्वर्जन इनका हो गया। कैसे हुआ वो देखना अभी थोड़े टाइम में। एंड देयर आफ्टर यूज ऑफ आयरन जो है
ये इनको पता था, और इनके जो मेजॉरिटी ऑफ द सेटलमेंट जो है वो स्लोप या फिर हिल्स पे ही हम लोगों को मिले हैं। तो दिस इज द बेसिक लेवल का डाटा। मुझे नहीं लगता प्रीलिम्स में यूपीएससी इसके ऊपर कुछ पूछेगी, बट स्टिल जो एनसीईआरटी में डाटा है दैट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। ये थोड़ा सा ऊपर वाले जो 2 पॉइंट है वो मेरे एडिशन थे, लेटर ऑन ये वाला जो डाटा है ये हम लोगों को एनसीईआरटी से ही मिला है। तो इसको बस याद रखना है, पैलियो मेजो नियो चैल्को, एंड उसके बाद में नॉर्थ में ब्रॉन्ज आयरन एज आया, साउथ में ब्रॉन्ज एज नहीं था, साउथ में डायरेक्टली आयरन एज आया। एंड आयरन एज का मतलब क्या हुआ, तो आयरन एज का मतलब हुआ आपका मेगालिथिक फेज। इनको मेगालिथिक क्यों बोला जाता है, बिकॉज कुछ रिटन एविडेंसेस इनके बारे में हमारे पास एज सच अवेलेबल नहीं है। हाउएवर हम लोगों को इनके बारे में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से पता चलता है, और आर्कियोलॉजी में अगेन पत्थर बिकम इम्पॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई मेगालिथ। इनके जो बरियल है, बरियल में हम लोगों को बड़े बड़े पत्थर के एविडेंसेस मिले हैं, तो पत्थर भी मैंने आपको दिखाई दिए थे। तो इट इज़ बेसिकली आयरन एज। इन लोगों को एग्रीकल्चर पता था, बट ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते थे, सेम एज दैट ऑफ द वैदिक एज। वैदिक एज में भी हमने देखा था कि ऋग्वेदा में लोगों को एग्रीकल्चर पता था, बट दे रिमेन और दे चोज टू रिमेन पैस्टोरल। वैसे ही कुछ चीज़ें यहाँ पे भी थी। एंड देयर आफ्टर इनके पास से हम लोगों को ब्लैक एंड रेड वेयर की जो पॉटरी है वो मिली है। ये 3 फैक्चुअल डाटा जो है वो इनके बारे में आपको याद रखने ही रखने हैं। एंड जो बैकग्राउंड जो है दैट इज ब्रॉन्ज एज, सिर्फ नॉर्थ में था, साउथ में नहीं था। एंड मेगालिथिक इटसेल्फ इज एन आयरन एज, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज संगम लिटरेचर। तो ये जो मेगालिथिक फेज जो है इसका जो ट्रांजिशन है टू द बिग किंगडम दैट इज पांड्यास, छोलास एंड चेरास, ये कैसे हुआ, तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलती है संगम लिटरेचर में। तो जैसे साउथ में हमने देखा था कि जो ट्राइबल इकोनॉमी है वैदिक पीरियड की, तो वो ट्राइबल इकोनॉमी में महाजनपदास के एलिमेंट कैसा है, एंड ट्राइबल इकोनॉमी महाजनपदा में कैसे कन्वर्ट हुई, तो जना का बिकेम जनपदा, जनपदा का बिकेम महाजनपदा। ये ट्रांजिशन हमें कहाँ से मिलता है, तो वैदिक एज से मिलता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो वैसे ही साउथ में भी तो स्टेट फॉर्मेशन हुए, ये बड़े बड़े किंगडम आए। तो ये जो बड़े बड़े किंगडम जो आए तो वो एग्जैक्टली कैसे आए, एंड फिर मेगालिथिक से उनका कन्वर्जन ये बड़े किंगडम में कैसे हुआ। तो दिस इज समथिंग, ये जो स्टोरी है ये हम लोगों को संगम लिटरेचर से पता चलती है। तो लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहले तो संगम लिटरेचर जो है वो एग्जैक्टली है क्या। तो संगम लिटरेचर जो है वो लिटरेचर है, वो कहाँ पे कंडक्ट किया गया था, फिर कहाँ पे बनाया गया था, तो संगम में बनाया गया था। तो अकॉर्डिंग टू तमिल लेजेंड, ओके, ये संगम लिटरेचर है, तमिल लैंग्वेज में है। तो अकॉर्डिंग टू तमिल लेजेंड ये जो संगम लिटरेचर है वो टोटल 3 असेंबली या फिर 3 संगमास में कंडक्ट किया गया था। मतलब पांड्यन किंग जो है उन्होंने 3 संगम दैट इज असेंबली बुलाई थी। तो 3 संगम दैट इज 3 असेंबली इन्होंने बुलाई थी पांड्यन किंग्स ने, और ये असेंबली में जितना भी लिटरेचर कंपाइल किया गया उसको आप बोलोगे संगम लिटरेचर। तो अकॉर्डिंग टू तमिल माइथोलॉजी 3 ऐसे टोटल संगम हुए थे। पहला वाला जो संगम है वो कैपिटल में हुआ था, दैट इज मदुराई में। तो इन लोगों का ऐसा कहना है कि लेजेंडरी गॉड एंड सेजेस सब इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली इसका कोई भी बुक जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। देयर आफ्टर फिर सेकेंड संगम है, सेकेंड संगम जो है वो कपटपुरम में हुआ था। एंड ये जो कपटपुरम है इसका सिर्फ एक ही बुक हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज तोलकापियम। एंड देयर आफ्टर फिर थर्ड संगम जो वो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि भाई पहले 2 संगम का लिटरेचर अवेलेबल क्यों नहीं है, बिकॉज ये थर्ड संगम का जो लिटरेचर है दैट इज गिविंग अस अ स्टोरी कि देयर वाज अ लार्ज स्केल फ्लड इन द पांड्यन कैपिटल ऑफ द मदुराई। एंड फिर ये जो फ्लड आया उसमें ये सारा का सारा लिटरेचर है वो बह गया, वो खो गया। और अब यही लिटरेचर को रिवाइव करने के लिए या फिर वापस लिखने के लिए ये तीसरी वाली असेंबली जो है वो हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं। दिस पीपल दैट इज थर्ड असेंबली से हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिली है। तो इनका कहना है कि फर्स्ट संगम जो है उसका जो चेयरपर्सन था वो था ऋषि अगस्त्य, और ऋषि अगस्त्य इज बेसिकली अ वैदिक पर्सनालिटी ऑल्सो, राइट। अगर आपको पता रहेगा तो अगस्त्य जो है वो 7 ग्रेट सेजेस जो है हिंदू माइथोलॉजी के उसमें से एक नाम है, और संगम लिटरेचर भी हमें ये नाम दे रहा है। तो उससे हमने यही कंसिडर कर लिया कि कल्चरल एमैलगमेशन का ये एक पार्ट रहा होगा। जब आर्यन रिलीजन ने अपने आप को साउथ इंडिया में स्प्रेड करना चालू कर दिया तो साउथ इंडिया के लोग हैं वो आर्यन रिलीजन क्यों अडॉप्ट करेंगे, तो साउथ इंडिया के जो हीरोज है उनको आप हिंदू माइथोलॉजी या फिर वैदिक लिटरेचर का पार्ट बनाओ। एंड दैट इज समथिंग दैट वी कैन कॉल एज अ कल्चरल एमैलगमेशन
जिसके एविडेंसेस हम लोगों को यहाँ पे दिखते हैं। देयर आफ्टर फिर थर्ड संगम है, वो हमें ये भी इंफॉर्मेशन देता है कि जो सेकेंड संगम जो है उसका जो चेयरपर्सन है उसका नाम है तोल्कापियार। अगेन काफी फेमस पर्सनालिटी है साउथ में। एंड तोल्कापियार ने जो बुक लिखा है दैट इज तोल्कापियम। दिस पर्टिकुलर बुक इज क्वाइट एसेंशियल बिकॉज जैसे हमने देखा था पाणिनि का अष्टाध्यायी संस्कृत ग्रामर का सबसे पहला वाला बुक है, समवेयर अराउंड 6 से लेके 4th सेंचुरी BC के बीच में लिखा हुआ, वैसे ही तमिल लिटरेचर का वन ऑफ द अर्लीस्ट ग्रामेटिकल बुक इज तोल्कापियम। ये किसने लिखा था? तोल्कापियार ने लिखा था। एंड हु वाज तोल्कापियार? देन ये सेकेंड संगम का चेयरपर्सन। एंड फिर थर्ड संगम का जो चेयरपर्सन है उसके बारे में भी इन्होंने इंफॉर्मेशन देके रखी है, उनका नाम है नक्किरार। तो नक्किरार इज बेसिकली द चेयरपर्सन ऑफ द थर्ड संगम। तो 3 संगम है, 3 संगम मतलब 3 असेंबलीज है, उसमें से 2 तो ऑब्वियसली इन्होंने पहले कंडक्ट करवाई थी और उसका लिटरेचर खो गया इन अ फ्लड, मतलब एक बाढ़ आई थी उसमें खो गया। तो दैट्स व्हाई वी कैन फाइंड द थर्ड संगम इज बीइंग कंडक्टेड ओवर हियर। एंड इसमें हम लोगों को कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने पहले वाले संगम के बारे में भी देके रखी है, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो वही है ऋषि अगस्त्य, which shows the cultural amalgamation of the south culture and north culture. And thereafter फिर तोल्कापियम, that is basically the first book on the Tamil grammar. तो इन्होंने जो थर्ड संगम में जो लिटरेचर कंपाइल किया, अब यही वाला सारा का सारा जो लिटरेचर है अब हमारे पास है। पहले का कुछ बचा नहीं है, दूसरे का सिर्फ एक बुक बचा है दैट इज तोल्कापियम, जो मैंने बताया कि अर्लीस्ट बुक ऑन द तमिल ग्रामर है। एंड फिर जितना भी संगम लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है वो हमारे पास है फ्रॉम द थर्ड संगम इटसेल्फ। तो अब देखते हैं कि ये संगम लिटरेचर जो है वो एग्जैक्टली क्या है। अब इसमें अगेन आपको समझना पड़ेगा कि जब मैं संगम बोलता हूँ तो संगम ऐसा नहीं कि आ गए 10 दिन के लिए बैठ लिए और इन्होंने लिटरेचर कंपाइल करवा लिया। अकॉर्डिंग टू अगेन तमिल माइथोलॉजी ये संगम लिटरेचर जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ 8000 ईयर बना है। तो 8000 ईयर, अगेन इसमें मैंने आपको पहले भी समझाया था कि 8000 ये आपके लिए और मेरे लिए अलग डिजिट है, बट फॉर दिस पीपल इट मस्ट हैव बीन अ डिफरेंट डिजिट। क्यों? बिकॉज नंबरिंग सिस्टम जो है 0 से लेके 9 ये आर्यभट्ट ने गुप्ता एज में डेवलप की है, मतलब इनके बाद। तो अगर इन्होंने लिख के रखा है तो उसका मतलब 8000 साल ही होगा क्या? नहीं, एग्जैक्टली क्या होगा ये अगेन हम लोगों को नहीं पता, बट इट शोज कि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली लिखा गया लिटरेचर है। ओके और ये जो ग्रेजुअली लिखा गया लिटरेचर है उसका फिर इन्होंने कैटेगराइजेशन भी करके रखा है। तो दे हैव गिवन अस 2 काइंड ऑफ द कैटेगराइजेशन, एक को आप बोलोगे मिल्कानाकू, दूसरों को आप बोलोगे किल्कानाकू। तो ये जो किल्कानाकू है वो डिडैक्टिक वर्जन है, मिल्कानाकू जो है वो नैरेटिव वर्जन है। नैरेटिव वर्जन मतलब स्टोरी टेलिंग टाइप, पैराग्राफ वाइज में लिखा हुआ लिटरेचर। एंड आफ्टर जो आपका डिडैक्टिक वर्जन जो होता है दैट इज किल्कानाकू, तो जो डिडैक्टिक वर्जन है वो पंक्तियों में लिखा जाता है, दोहा में लिखाया जाता है, जैसे आप पोएम लिखते हो, ओके द वे यू राइट दी पोएम, तो उस तरीके से ये वाला लिटरेचर जो है वो लिखा जाता है। तो बस नाम याद रखना, मिल्कानाकू एंड आफ्टर किल्कानाकू, एक नैरेटिव है एंड एक डिडैक्टिक है। एंड बोथ मिल्कानाकू एंड किल्कानाकू आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एंथोलॉजीज बेसिकली, ओके डिफरेंट टाइप ऑफ द एंथोलॉजीज। तो उट्टुटोगाई एंड आफ्टर पुट्टू पुट्टू। तो उट्टुटोगाई इज बेसिकली 8 कलेक्शन, पुट्टू पुट्टू जो है दैट इज बेसिकली 10 कलेक्शन और 10 सॉन्ग। तो ये फर्दर कैटेगराइजेशन है मिल्कानाकू एंड किल्कानाकू का। एंड आफ्टर इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा लिटरेचर भी लेके रखा है अबाउट वॉर पोएट्री एंड आफ्टर लव पोएट्री। तो लव पोएट्री को ये अगाम बोलते थे या फिर इसको एकम भी बोला जाता था, एंड वॉर पोएट्री को ये लोग पूरम बोलते थे। ये वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एज यू नो प्रीलिम्स में यूपीएससी आपको यही वर्ड्स पूछने वाली है कि भाई बताओ अकाम का मीनिंग क्या होता है, पुराम का मीनिंग क्या होता है, या फिर मिल्कानाकू एंड किल्कानाकू आर वर्ड रिलेटेड टू वैदिक लिटरेचर, संगम लिटरेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे सवाल आपको आ सकते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड वैसे ही जैसे नॉर्थ इंडिया में माइथोलॉजी में आपको रामायण एपिक में आपको रामायण एंड महाभारत मिलेगा, तो साउथ इंडिया में एपिक जो है देर आर टोटल 5 एपिक। नॉर्थ में 2 ही है, साउथ इंडिया में टोटल 5 एपिक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें से शिल्पादिकरम एंड मणिमेखलाई। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर हैविंग शिवका, चिंतामणि, वलयपति एंड कुंतलकेसी। तो ये जो टोटल 5 एपिक है उसमें से 2 बुक इंपॉर्टेंट है दैट इज शिल्पादिकरम एंड मणिमेखलाई, बिकॉज ऐसा कंसिडर किया जाता है कि ये जो 2 बुक है वो 6th सेंचुरी एडी के पहले लिखे गए हुए बुक हैं। एंड देयर आफ्टर ये जो बाकी के 3 जो बुक है ये समवेयर अराउंड 11th सेंचुरी एडी के अराउंड लिखे हुए बुक है।
तो फॉर द कंटेम्प्रेरी पीरियड, मतलब अभी का जो हम पीरियड पढ़ रहे हैं, उसमें हमारे लिए 2 ही बुक इंपॉर्टेंट है, शिल्पादिकरम जो इलैंगो अदिगाल ने लिखा था, एंड देयर आफ्टर मणिमेखलाई जो सत्यनार ने लिखा था। ओके, तो शिल्पादिकरम, इलैंगो अदिगाल, मणिमेखलाई, सत्यनार। नाउ इसके बुक के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ओके, तो वो देखेंगे थोड़ी बहुत। सबसे पहले तो ये शिल्पादिकरम जो है ये एक लव ट्रायंगल है। ओके, इट इज अ स्टोरी बिटवीन कोवालन हु इज मैरिड टू कन्नगी एंड thereafter एक कोर्टिजान है दैट इज माधवी। तो कोर्टिजान मतलब बेसिकली कोर्ट में उस टाइम के लिए राजाओं के लिए दासियां मेंटेन रखी जाती थी। इट वॉज अ काइंड ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन ओनली। तो ऐसी एक कोर्टिजान जो है दैट इज बेसिकली माधवी। तो कोवालन एंड कन्नगी वेर मैरिड, बट मैरिज के बाद भी कोवालन अनफॉर्चुनेटली यू कैन से यार समहाउ ही फेल इन लव विद द माधवी, एंड फिर माधवी एंड कोवालन एक साथ रहने लग गए। कन्नगी को घर से निकाल दिया माधवन ने। कन्नगी फिर भी अपने हस्बैंड के साथ फेथफुल रही एंड शी वेटेड फॉर हर हस्बैंड टू कम बैक। तो ये वाली जो पूरी की पूरी लव सागा है, लव स्टोरी है, ये बेसिकली आपको मिलेगी शिल्पादिकरम में। एंड देयर आफ्टर फिर जो नेक्स्ट बुक है दैट इज मणिमेखलाई। तो जो मणिमेखलाई है इट इज बेसिकली द बुक ऑफ द डॉटर बॉर्न टू द कोवालन एंड माधवी। तो कोवालन एंड माधवी की जो बेटी है उसके बारे में ये बुक है। तो अभी आप ऑब्वियसली पूछोगे सर इसके बारे में फिर इतना इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एपिक हम लोगों को कंटेम्प्रेरी तमिल सोसाइटी एंड देयर आफ्टर तमिल कल्चर इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि अगर आपने लव स्टोरी देखी तो जैसे नॉर्थ में पॉलीगैमी थी वैसे ही साउथ में भी पॉलीगैमी चल रही है। जैसे नॉर्थ में लड़कियों को या फिर जो फीमेल है उनको अपने हस्बैंड के साथ हमेशा लॉयल रहना था, वैसे ही साउथ में भी हम लोगों को दिख रहा है कि वही वाले रूल्स जो वो वुमन के लिए बनाए जा रहे हैं। एंड देयर आफ्टर लव स्टोरीज वर क्वाइट कॉमन नॉर्थ में भी, एंड लव स्टोरीज हम लोगों को यहाँ पे भी साउथ में भी काफ़ी कॉमन दिख रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो नेक्स्ट वाला बुक है मणिमेखलाई, तो मणिमेखलाई इज अबाउट द डेस्टिट्यूट चाइल्ड। डेस्टिट्यूट चाइल्ड मतलब ये ऐसी लड़की है जिसको अपने पापा का पता ही नहीं है, एंड बेसिकली शी इज द डॉटर ऑफ अ कोर्टिजान। तो बेसिकली उसके लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो रही है, एंड जिसमें हम लोगों को कावेरी पट्टनम, उसको उस टाइम पे पुहार भी बुलाया जाता था, तो उसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली है। तो कंटेम्प्रेरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को ये 2 बुक से मिली है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर ये जो तोलकापियम है ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर लिया था। ओके, तो यही है लिटरेचर बेसिकली एंटायर संगम लिटरेचर, मेलकानाको, किल्कानाको, देयर आफ्टर 5 एपिक, एंड देयर आफ्टर फिर हमारे पास एक और बुक है दैट इज तोलकापियम। तो जो 5 एपिक है उसमें इंपॉर्टेंट है ये अपना बेसिकली शिल्पादिकरम एंड देयर आफ्टर मणिमेखलाई। तो ये जो नाम है इसको थोड़ा सा याद रखना, थोड़ी बहुत जो स्टोरी मैंने बताई है उसको याद रखना, एंड ऑथर का थोड़ा सा याद रखना। शिल्पादिकरम है वो इलैंगो अदिगाल ने लिखा था, मणिमेखलाई है वो सत्यनार ने लिखा था। ओके, सो दिस संगम लिटरेचर इज बेसिकली गिविंग अस द स्टोरी रिलेटेड टू द कंटेम्प्रेरी सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट। एंड संगम लिटरेचर पांड्यास के बारे में लिखा हुआ है। पांड्यास ने ये पूरा का पूरा लिटरेचर है उसको पैट्रोनाइजेशन दिया था। तो पांड्यन किंगडम में क्या चल रहा है, और बाजू के 2 इंपॉर्टेंट किंगडम है दैट इज छोलाज एंड चेराज जो पांड्या के अपोजिशन है, उनमें क्या क्या चल रहा है इसके ऊपर संगम लिटरेचर हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। बट उन्होंने थोड़ा बैकग्राउंड भी दिया, जैसे उन्होंने पहले 2 संगम के बारे में बताया वैसे ही उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ द तमिल पॉलिटी के बारे में भी हम लोगों को बताया कि एग्जैक्टली 3 किंगडम जो है वो आई कैसे। तो अब उसके बारे में एक एक देखेंगे। तो सबसे पहले संगम लिटरेचर इज टेलिंग अस कि लैंड जो साउथ इंडिया का जो है, ओके, साउथ इंडिया का लैंड मतलब कृष्णा तुंगभद्रा रिवर के नीचे। तो कृष्णा तुंगभद्रा रिवर के नीचे वाला जो लैंड है इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट तिनाई और जियोग्राफिकल रील्म। तो आपको यहाँ पे नाम भी दिखेगा, तिनाई मतलब होता है जियोग्राफिकल रील्म और एरिया। तो ऐसे हमें टोटल 5 एरियाज उन्होंने देके रखे थे। सबसे पहले कुरुंजी, ये कुरुंजी एरिया में जो लोग रहते थे, तमिल लिटरेचर संगम लिटरेचर ने हमें बताया है कि ये वाले जो लोग हैं वो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग के ऊपर यकीन रखते थे। देयर आफ्टर हमारे पास पलाई वाला एरिया है। तो पलाई वाला जो एरिया है, ओके, ये वाले एरिया में सब रॉबर्स लोग ही रहा करते थे। तो लिफ्टिंग ऑफ द बेसिकली लिफ्टिंग ऑफ द कैटल एंड प्लंडरिंग यही इनका प्रोफेशन था। फिर इन्होंने एक मुलाई वाले एरिया के बारे में बताया है जहाँ पे इन्होंने कल्टीवेशन की बात की है। तो यही इनका बेसिक एलिमेंट है कि पहले मेगालिथिक एज था, मेगालिथिक एज के बाद ये ट्राइबल कल्चर डेवलप हुआ जिसमें टोटल 5 डिफरेंट
तिनाई मतलब रिल्म आ गए, एंड फिर हर एक रिल्म में एक स्पेसिफिक प्रोफेशन वाइज लोग रहते थे। तो उसमें से जो तीसरा रिल्म है दैट इज मुलाई, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को एनिमल हस्बेंड्री एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन के इंफॉर्मेशन इन्होंने दे के रखी है। देर आफ्टर मारुतम, जो एक्चुअल में टोटल फर्टाइल प्लॉग एग्रीकल्चर वाला एरिया था, तो मारुतम के बारे में इन्होंने बताया है। एंड देर आफ्टर नेतल, तो नेतल जो वो कोस्टल कम्युनिटी थी जहाँ पे फिशिंग एंड देर आफ्टर सॉल्ट मेकिंग चल रही थी। पीपीटीज तो अभी तक आई गेस आपको अवेलेबल होगी, तो उसमें अगर आपने देखा तो स्टार्टिंग फ्रॉम कुरुंजी, ये कुरुंजी वाला एरिया है, देर आफ्टर पलाई उसके सराउंडिंग वाला एरिया, फिर मुलाई, ये मुलाई वाला एरिया है, फिर मारुतम वाला एरिया है, एंड देर आफ्टर कोस्टल वाला एरिया है। तो उसमें यू कैन क्लियरली सी कोस्टल एरिया में तो लोग क्या करेंगे, दैट इज नेतल में फिशिंग एंड सॉल्ट मेकिंग ही करेंगे। एंड देर आफ्टर मुलाई एंड मारुतम जो वाले दो एरियाज है, ये दो सराउंडिंग वाले एरिया, ये पहाड़ का जो है वो डाउन साइड है, लीवे साइड है। तो जब आप पहाड़ के डाउन साइड में रहते हो तो आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बेसिकली फर्टाइल होता है बिकॉज ऑफ द रेन। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है। एंड फिर जो जंगल के इंटीरियर वाला जो एरिया है दैट इज बेसिकली कुरुंजी, तो वहाँ पे आपको हंटर फूड गैदरर ही मिलेंगे। एंड जो बीच वाली जो कम्युनिटी है हंटर फूड गैदरर एंड एग्रीकल्चर, इन दोनों के बीच में, तो वो थे रॉबर्स वाली बेसिकली पलाई वाला रीजन। तो तमिल लिटरेचर इज बेसिकली गिविंग अस, संगम लिटरेचर इज टेलिंग अस दिस थिंग ओनली कि भाई देखो ये 5 एरियाज है, टोटल 5 तिनाइज है हमारे पास, और ये जो 5 तिनाइज जो है ओके, ये 5 तिनाइज में हर एक तिनाई का एक चीफ हुआ करता था। वो चीफ को आप बोलोगे मूवेंदर। तो मूवेंदर्स आर बेसिकली तमिल चीफ। तो हर एक पर्टिकुलर एरिया का आपको एक मूवेंदर या फिर चीफ भी मिलेगा। एंड देयर आफ्टर दे हैव स्टार्टेड टू टॉक अबाउट द स्टेट फॉर्मेशन इन द साउथ इंडिया। ये वाला जो हमारा एरिया जो है, अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्टेट फॉर्मेशन बनना चालू हुआ है। तो स्टेट फॉर्मेशन बनना क्यों चालू हुआ है, तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस या फिर फैक्टर्स हम लोगों को संगम लिटरेचर में मिलते हैं। तो सबसे पहले स्टेट फॉर्मेशन यहाँ पे चालू हुआ मौर्यंस पोस्ट मौर्यन टाइम में, समवेयर अराउंड 3rd सेंचुरी बीसी। ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम नॉर्थन साइड से लेके साउथर्न साइड में। इसमें हमने 1-2 स्टोरीज भी देखी थी, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है ओके, ही ट्रेवल टू द श्रावण बेलगोला, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंटरेक्शन ऑफ द नॉर्थन एंड सदर्न कम्युनिटीज विद इन आवर कंट्री। और ये जो नॉर्थन एंड सदर्न इंटरेक्शन के आपको एविडेंसेस है वो आपको महाभारता में भी मिलेंगे एंड रामायणा भी मिलेंगे, बिकॉज रामायण एंड महाभारता जो है वो हिंदू एपिक है, नॉर्थ इंडियन एपिक है। तो इनको अगर साउथ इंडिया में अपना रिलीजन फैलाना है तो वहाँ के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स या फिर इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनको रामायण या फिर महाभारता में लेके आना जरूरी है, राइट। तो वैसे ही संगम लिटरेचर ने हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई अर्लीस्ट लेवल पे समवेयर अराउंड 3rd सेंचुरी से लेके 4th सेंचुरी, मतलब मौर्यन पीरियड ऑफ टाइम के अराउंड कभी ना कभी तो जो माइग्रेशन है नॉर्थ से साउथ में बहुत ही लार्ज स्केल में चालू हुआ था। एंड ये ट्रू भी है, बिकॉज हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने साउथ में माइग्रेशन किया था। उसका जो बेटा है दैट इज बिंदुसारा, उसने सबसे पहले साउथ इंडिया कैप्चर करना चालू कर दिया था। सो बिंदुसारा इज कंसिडर्ड एज अ पर्सन हु हैज कैप्चर्ड लैंड इन बिटवीन 2 सीज, राइट। तो ये अर्लीस्ट लेवल के जो कॉन्ट्रैक्शन के या फिर कॉन्टैक्ट के एविडेंसेस हम लोगों को संगम लिटरेचर ने दिए हैं। और अब ये आप ही सोचिए, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसारा अगर खुद साउथ में जाएगा, साउथ के लोग देखेंगे, तो ऑब्वियसली साउथ में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि स्टेट फॉर्मेशन एंड बड़े बड़े स्टेट कैसे बनाए जाते हैं। ये आर्ट एंड क्राफ्ट ये बेसिकली साउथ में अब चालू होना शुरू हो गया। देयर आफ्टर फिर एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट चालू किए अर्लीस्ट लेवल पे। पहले ये जैन मॉन्क, देयर आफ्टर फिर बुद्धिस्ट मॉन्क। ये साउथ में जब गए तो ऑब्वियसली साउथ में जाने के बाद हंटिंग एंड फूड गैदरिंग तो ये लोग करेंगे नहीं। जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क जो है उनको तो नॉन वायलेंस करना है। तो जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क ने एग्रेरियन प्रैक्टिसेस साउथर्न रीजन में चालू कर दी। तो ये वाले एविडेंसेस भी हम लोगों को दिए है किसने, तो संगम लिटरेचर ने। देयर आफ्टर जो कॉन्टैक्ट जो है ओके, उसमें उन्होंने एक स्पेसिफिकली टर्म यूज कर ली है दैट इज तमिलहाम। तमिलहाम को बेसिकली तमिज़कम भी बोलते हैं। तो तमिलहाम या फिर तमिज़कम इज बेसिकली लैंड बिलो कृष्णा तुंगभद्रा इन जनरल एंड कावेरी रिवर इन पर्टिकुलर। बट आप रफली कृष्णा तुंगभद्रा के नीचे वाला जो लैंड है उसके बारे में आप ये पूरा का पूरा एरिया उसको कंसिडर कर सकते हैं। देयर आफ्टर दिस पीपल आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ। तो उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ जो है उसके बारे में हमने पहले ही इलैबोरेटली डिस्कस करके रखा है। एंड संगम लिटरेचर में भी इन्होंने हम लोगों को बता के रखा है कि दक्षिण पथ जो है
वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? बिकॉज हम लोग दैट इज साउथ, दैट इज तमिल लोग जो है वो गोल्ड एंड देयर आफ्टर पर्ल एंड देयर आफ्टर वेरियस प्रेशियस स्टोन जो है नॉर्थ को सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो ट्रेड नेटवर्क जो डेवलप हुआ उससे कांटेक्ट बढ़ा, कांटेक्ट बढ़ेगा तो आपका स्टेट फॉर्मेशन जो है वो भी अच्छा खासा बढ़ेगा इन द साउथ इंडिया। एंड उसी का अल्टीमेट रिजल्ट है कि बाय द टाइम ऑफ द अशोका, बिंदुसारा के बाद जब अशोका का टाइम आया तो अशोका ने एकदम डीप साउथ वाला जो एरिया है दैट इज छोलास, चेरास एंड पांड्यास, हमने मैप में भी स्टार्टिंग में ही देखा था, उनको फ्रेंडली नेबर बोला है। अशोका ने हम लोगों को और एक नाम दिया है दैट इज बेसिकली सत्यपुत्रा, बट ये सत्यपुत्रा एग्जैक्टली कौन थी ये अब तक हम लोगों को नहीं पता। अशोका ने जो केरल पुत्रास जो नाम लिखा है दोज आर नाउ आइडेंटिफाइड विद द चेरास। तो चेरास को उस टाइम पे केरल पुत्रा बोला जाता था, वेर एज छोलास एंड पांड्यास तो है ही। ओके, तो दिस इज समथिंग दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द स्टेट फॉर्मेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट ओके, साउथ में भी कुछ कुछ चीज़ें जो वो डेवलप्ड हुई थी। तो वो कौन सी चीज़ें डेवलप हुई थी? तो सबसे पहले तो आयरन डेवलप हुआ था साउथ में। तो आयरन हम लोगों ने देखा था कि नॉर्थ में आयरन जो है उसका एक काफ़ी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस था। जब आपका आयरन आएगा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बढ़ेंगे, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जब आपके बढ़ेंगे तब आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा एंड देयर आफ्टर आयरन की वजह से आपका और एक चीज़ बढ़ेगा दैट इज बेसिकली मिलिट्री टेक्नोलॉजी। तो हमने रथमुसला, महाशीलकंटका ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अजातशत्रु उसकी बात की थी, राइट। तो ये पर्टिकुलर दो एस्पेक्ट जो है वो आयरन टेक्नोलॉजी को सुपीरियर बनाते हैं। इन लोगों को आयरन भी पता था तो इन्होंने अपना आयरन टेक्नोलॉजी कंबाइन कर लिया किसके साथ? नॉर्थ साइड से जो कांटेक्ट हो रहा था, बेसिकली जो फ्लरिशिंग ट्रेड हो रही थी उसके साथ। एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर ट्राइबल चीफ जो है मूवेंदर जो है वो एक दूसरे के साथ वॉरफेयर करने लग गए एंड अल्टीमेटली 3 बड़े डायनेस्टीज या फिर किंगडम जो हम लोगों को साउथ इंडिया में मिले हैं। और ये जो 3 बड़े किंगडम है दैट इज बेसिकली पांड्यास, छोलास एंड चेरास। तो अब पांड्यास, छोलास, चेरास के बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें दे के रखी है। हमको सिर्फ उतनी ही करनी है जितनी एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी के अलावा थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो है आई विल गिव इट टू यू, जो मेरे ख्याल से प्रीलिम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। बट अभी यहाँ तक अगर कोई डाउट रहेगा गाइस देन यू कैन लेट मी नो, ठीक है। आई विल गिव यू अ मिनट, अगर कोई भी डाउट रहेगा देन यू कैन लेट मी नो गाइस, ओके। हाँ, साउथ इंडिया के नाम जो थोड़े से डिफिकल्ट तो जाएंगे ही, ओके, बट ऑब्वियसली ये दोनों तरीके से होता है। साउथ इंडिया को नॉर्थ के नाम डिफिकल्ट लगते हैं, नॉर्थ को साउथ के लगते हैं, बट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम। अगर एग्जाम के पर्पज से भी आपने याद रख लिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ओके। हाँ, ओके, डिफरेंस बिटवीन खारोष्टी एंड प्रकृत एंड ब्राह्मणी एंड अरेमिक, ठीक है। हर्ष, मैंने पहले भी बताया था, ये पहले वाले लेक्चर्स में मैंने कवर किया है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट अगेन। जाओ पहले वाले लेक्चर एंड देयर आफ्टर फिर बताओ मुझे, ओके। यस, एनीथिंग एल्स गाइस? ओके, जल्दी जल्दी अगर कोई भी और डाउट रहेगा देन लेट मी नो, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। यस, एनीथिंग एल्स गाइस? और कोई डाउट है? यस, गुड इवनिंग टू यू ऑल, ओके। बट कोई डाउट रहेगा तो जल्दी जल्दी पूछो, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड गाइस, ठीक है। Yes, so anything till here so far? No doubt? चलो बढ़िया, so I'll move forward. संगम पॉलिटी then we are having, तो as far as संगम पॉलिटी is concerned then की 3 किंगडम है हमारे पास, पांड्यास, छोलास एंड thereafter चेरास। तो एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले पांड्यास। नाउ एज फार एज पांड्यास आर कंसर्न देन पांड्यास जो है वो 2 चीज़ों के लिए फेमस है ड्यूरिंग दिस स्पेसिफिक टाइम। वो कौन सी 2 चीज़ें? तो सबसे पहले पांड्यास का जो संगम लिटरेचर जो है और उसका जो पैट्रोनाइजेशन है उसके वजह से, तो संगम लिटरेचर के बारे में तो हमने अभी बात कर ही ली थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट पांड्या के डायरेक्ट ट्रेड कॉन्टैक्ट थे एंशियंट रोमन एम्पायर से। एंड पांड्यास के बारे में हम लोगों को इसी पीरियड में ओके मेगास्थीनिस का जो इंडिका है उससे भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिली है। तो मेगास्थीनिस का जो इंडिका बुक जो है उसने पांड्यास के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमें देके रखा है बाय स्टेटिंग कि इन पांड्यन किंगडम, उसने ऐसे बताया कि पांड्यन किंगडम में मेरे को 7 ईयर ओल्ड मदर मिली है। तो मतलब एक 7 साल की लड़की प्रेग्नेंट है ऐसा उसका कहना है। ओके, वी डू नॉट नो एग्जैक्टली हाउ इज दैट पॉसिबल, फिजिकली इम्पॉसिबल है, बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है, बट जस्ट रिमेंबर फॉर द फैक्चुअल प्रीलिम्स डाटा कि मेगास्थीनिस ने ऐसा कुछ बता के रखा था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेगास्थीनिस का जो इंडिका उसने हमें ये भी बताया कि पांड्यन किंगडम जो है इट इज रिनोन और वर्ल्ड फेमस फॉर द पर्ल ट्रेड।
तो पर्ल दैट इज बेसिकली मोती, तो मोती का जो ट्रेड है उसके लिए ये लोग फेमस है। पांड्यंस के बारे में संगम लिटरेचर से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि रोमन ट्रेड में इनका काफी बड़ा योगदान था, या फिर दे हैड अ डायरेक्ट ट्रेड कॉन्टैक्ट विद द रोमन। एंड एज फार एज मेगास्थनीज इंडिका इज कंसर्न, दैट दिस टू एस्पेक्ट इज समथिंग दैट वी हैव गॉट टू नो। देयर आफ्टर हमारे पास फिर छोलाज है ना। एज फार एज छोलाज, इसमें एक और चीज याद रखना, पांड्या की जो कैपिटल है, ओके, तो इनकी जो कैपिटल है वो है मदुराई। साउथर्न मथुरा भी बोला जाता है इसको, बट मदुराई इज बेसिकली द कैपिटल ऑफ द पांड्यन किंगडम। देयर आफ्टर नेक्स्ट वन दैट इज छोलाज। ना एज फार एज छोलाज आर कंसर्न, देन छोलाज में कुछ कुछ चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ओके, इनका इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर जो था वो उरायूर था। तो उरायूर जो है ये इनका इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर था, बट इनकी जो कैपिटल जो थी वो कैपिटल वॉज समवेयर अराउंड पुहार। पुहार जो है वो मॉडर्न डे कावेरी पट्टनम के अराउंड वाला एरिया है, साउथ में ही है। तो ये जो कावेरी पट्टनम के अराउंड ये जो पुहार कैपिटल बनाने का जो पूरा क्रेडिट जो है वो इनके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग को जाता है। द नेम इज कराईकाल। तो कराईकाल ने दो चीजें की थी। सबसे पहले तो उसने एक बैटल ऑफ वेन्नी खेला था, एंड बैटल ऑफ वेन्नी ने उसने चेरा एंड देयर आफ्टर पांड्या, इनका जो कंबाइन अलायंस है उसको हरा दिया था। ये एंशियंट बैटल के नाम आपको थोड़े से पता होने चाहिए, जैसे हम लोगों ने पहले के टाइम पे बैटल ऑफ हिडाप्सिस, बैटल ऑफ पुरुषनी, ये सारे देखे थे। वैसे साउथ में एक इंपॉर्टेंट बैटल है दैट इज बैटल ऑफ वेन्नी। तो ये जो बैटल ऑफ वेन्नी जो है इट इज कंसिडर कि ये समवेयर अराउंड कावेरी रिवर पे ही खेला गया है। तो ये बैटल ऑफ वेन्नी में ये कराईकाल जो है छोला किंग, उन्होंने हरा दिया कंबाइन अलायंस ऑफ द चेराज एंड पांड्यास, तो इनको बेसिकली हरा दिया। देयर आफ्टर फिर ओके, कैपिटल जो वो मैंने बताया आपको पुहार या फिर कावेरी पट्टनम को ही आप कंसिडर करोगे। एंड देयर आफ्टर फिर ओके, 4th से लेके 9th सेंचुरी तक इनका जो पावर है वो डिक्लाइन हुआ, बट 9th सेंचुरी में एक सेकेंड फेज आया इनका। वो सेकेंड फेज काफी इंपॉर्टेंट है, जब मीडिएवल इंडिया में जाएंगे तब देखेंगे, दैट इज इंपेरियल छोलास। तो ये जो इंपेरियल छोलास जो है वो 8th सेंचुरी ऑनवर्ड वापिस राइज हुए इन साउथ इंडिया, एंड अल्टीमेटली इट वाज छोला डायनेस्टी जिन्होंने इंडियन कल्चर या फिर हिंदू रिलीजन या फिर वैदिक रिलीजन जी आप बोल सकते हो, उसको साउथ ईस्ट एशिया में फैलाने का काम किया। बट अब वो सारी मीडिएवल इंडिया वाली चीजें हैं, ये अर्ली छोलाज है। अर्ली छोलाज में एल्लारा नहीं, कराईकाल वाला जो नाम है वही आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, बिकॉज दैट इज देयर। तो उरायूर एंड देयर आफ्टर कावेरी पट्टनम, बैटल ऑफ वेनी एंड देयर आफ्टर कराईकाल इज देयर मोस्ट फेमस किंग। तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। देयर आफ्टर फिर चेराज, वी आर हैविंग चेराज। एज फार एज चेराज आर कंसर्न, देन चेराज में हम लोगों को एज सच कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। दे बेसिकली बिलोंग टू द केरला। अगेन फैक्चुअल डाटा है, देयर कैपिटल इज एट वांजी इज इन मॉडर्न डे केरला ओनली। उनका एक डायरेक्ट ट्रेड कॉन्टैक्ट था विद द रोमन, और इनका एक पोर्ट भी था दैट इज मुजरीस। ये मुजरीस पोर्ट जो है वो काफी फेमस है, बिकॉज रोमन लिटरेचर में ऐसा बोल के रखा है, या फिर रोमन जो ट्रैवलर्स है उन्होंने ये लिख के रखी है चीज कि मुजरीस में एम्पेरर ऑगस्टस जो है, ऑगस्टस द ग्रेट, तो उसका एक टेम्पल है। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को ना ये मुजरिस टाउन मिला है, ये कहाँ पर है ये भी हम लोगों को नहीं पता। एंड देयर आफ्टर अगर हम लोगों को टाउन ही नहीं मिला तो ये जो टेम्पल है वो भी हम लोगों को एज सच नहीं मिला है। बट बाय एंड लार्ज ऑल कंटेम्प्रेरी रिसोर्सेज जो है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो वो हम लोगों को दे के रखे हैं कि भाई ऑगस्टस का एक बड़ा टेम्पल है इन मुजरीस, और ये ऑगस्टस का टेम्पल मेंटेन करने का काम जो है ये चेरा डायनेस्टी ने किया था, एंड ऑब्वियसली करेंगे बिकॉज ये जो चेराज जो है उनका एक इलेबोरेट ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट था रोमन्स के साथ, एंड रोमन से जो पैसा आता था उसी के ऊपर इनकी जो पूरी की पूरी डायनेस्टी जो है वो चल रही थी। एंड देयर आफ्टर इनका जो ग्रेटेस्ट किंग है दैट इज रेड छोला, जिसको आप सेनगुट्टुवन भी बोलोगे। सेनगुट्टुवन को बेसिकली रेड छोला भी बोला जाता है। तो रेड सेनगुट्टुवन या फिर रेड छोला जो है ये पर्टिकुलर किंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। व्हाई दिस पर्टिकुलर किंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट? बिकॉज ऑफ हिज टू एस्पेक्ट। पहले तो उसने क्लेम किया है कि उसने गंगा तक का एरिया जो है, रिवर गंगा तक का एरिया वो कैप्चर करके रखा है, बट इसका कोई वेरासिटी हम लोगों को मिला नहीं है। बट उसका गंगा तक का एरिया कैप्चर करने से अलावा उसके अलावा एक और ग्रेट फीट है दैट इज बेसिकली पट्टनिकल। तो पट्टनिकल साउथ में अभी भी चलता है। तो अभी हमने थोड़े टाइम पहले शिल्पादिकरम की बात की थी, विच इज बेसिकली अ लव स्टोरी बिटवीन कोवालन, माधवी एंड कन्नगी।
तो उसमें से जो कन्नगी है, ओके, ये कन्नगी को इसने भगवान बना दिया था, बिकॉज कोवालन ने उसको छोड़ दिया, फिर भी कन्नगी जो है वो कहीं और किसी दूसरे के पास नहीं गई। शी वेटेड फॉर हर हस्बैंड टू कम बैक, और जब पति वापस आया तो डिस्पाइट बीइंग एन अनफेथफुल हस्बैंड, उसने पति को वापस एक्सेप्ट कर लिया। तो ही स्टार्टेड दिस पट्टनी कल्ट इन मेमोरी ऑफ गॉडेस कन्नगी। तो ये ऐसी जो मूर्तियाँ आपको साउथ इंडिया में, सिर्फ केरला में ही नहीं, तो आपको ये तमिलनाडु में भी मिलेंगी। एंड शी इज कंसिडर्ड एज अ गॉडेस ऑफ चैस्टिटी। अ चैस्ट पर्सन जो होता है वो ऐसा बंदा होता है जो सिर्फ अपने स्पाउस के साथ फिजिकल रिलेशन रखेगा, स्पाउस के अलावा और किसी के साथ नहीं। तो दिस बेसिकली जो कन्नगी पट्टनी कल जो है, विच इज नाउ सबसेक्ट ऑफ द हिंदू रिलीजन, यू कैन कंसिडर, ये पट्टनी कल चालू करने का काम जो है वो किया था सेनगुट्टुवन चेरा ने, दैट इज रेड चेरा ने। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द चेरा। तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, तीनों चीज़ों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, सो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको लगेगी इन ऑर्डर टू टैकल दिस पर्टिकुलर डायनेस्टीज, वो मैंने आपको दे दी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि दिस पर्टिकुलर पीरियड जो है वो पोस्ट मौर्यन पीरियड है। पोस्ट मौर्यन पीरियड मतलब 200 BC से लेके 300 AD के बीच में। और ये जो सारी डायनेस्टी है, दैट इज छोलास, चेराज एंड पांड्यास, इनके यही दो फेस आपको मिलेंगे। एक तो ये वाला इनका एक फेज है, और इनका एक दूसरा फेस है जो चालू होता है 600 AD से लेके और यूजुअली खत्म होता है 1310 AD को। तो इन दिस पर्टिकुलर पीरियड इन सारे डायनेस्टी का सेकेंड फेज भी हम लोगों को मिला है, जहाँ पे ये सारी डायनेस्टी जो है हम लोगों को वापस पढ़नी है। इन लोग को एक रिन्यूड विगर मिला। रिन्यूड विगर मतलब सारी जो डायनेस्टीज जो है इनके ऊपर अब कोई नॉर्थ इंडिया का बड़ा किंग राज नहीं कर रहा था। एंशियंट टाइम पर हमने देखा था अशोका और यू कैन कंसिडर मौर्यन डायनेस्टी ने इनके ऊपर राज किया, एंड देयर आफ्टर गुप्ता डायनेस्टी ने भी इनके ऊपर राज किया। ऐसे एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं। बट गुप्ता जैसे ही कोलैप्स हो गए, तो गुप्ता कोलैप्स होने के बाद ये डायनेस्टीज ने वापस से अपना सर उठाना चालू कर लिया, एंड देयर आफ्टर ये सेकेंड फेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये खत्म हो गया अराउंड 1310 या फिर 1312 AD के अराउंड with the invasion of the Malik Kafur. So it was Malik Kafur ultimately the great military commander of Alauddin Khilji. तो जो मलिक काफूर है उसने ये सारे के सारे जो किंगडम है इनको फाइनली अपने इंडिया के मैप से वाइप आउट कर दिया था इन 1310 से लेके 1312। रफली 3 साल के पीरियड में उसने साउथ इंडिया के जितने भी किंगडम है सारे किंगडम्स को ख़त्म कर दिया, जिसमें छोलास का भी नाम है, पांड्यास का भी नाम है, देयर आफ्टर काकातियाज ऑफ वारंगल का भी नाम है, एंड देयर आफ्टर होयसलाज ऑफ हलेबीडू का भी नाम है। तो ये जो 4 डायनेस्टी जो है साउथ इंडिया की जो एंशियंट टाइम से चलती आ रही थी, उनका अल्टीमेट जो एंड है वो हुआ विद द इन्वेजन ऑफ द मलिक काफूर। तो ये वाला जो पीरियड है उसमें तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ यही देखा है। तो इसका जो सेकेंड फेस है हम देखेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड में, जब इस वाले फेस में जाएंगे तब। बट यहाँ के लिए दिस इज सफिशिएंट। संगम पॉलिटी में छोलास, चेराज एंड पांड्यास। अब यहाँ तक अगर कोई डाउट रहेगा देन लेट मी नो, अगेन आई विल गिव यू अ मिनट। अगर कोई डाउट रहेगा तो जल्दी जल्दी लेट मी नो गाइज। ओके, यस, हाँ हाँ, यस, ऑब्वियसली छोलास को, सॉरी चेरास को ही केरल पुत्र बोलते हैं, वो तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया था। ओके, अरे कल कौन सा एग्जाम है भाई? अगर एग्जाम है तो थोड़ा सा ऑल द बेस्ट, ठीक से एग्जाम लिख के आना, ठीक है? ठीक है, ओके। सो देयर आफ्टर फिर छोलास, अंतिमा व्हाट अबाउट छोलास, वो भी तो बताओगे आगे, ठीक है? कन्नगी ने होल विलेज को जला दिया, ऐसा मैंने किसी बुक में पढ़ा था। देखो यार, वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, उसमें मैं इन डिटेल अभी जाना नहीं चाहूँगा बिकॉज उसका जाने का कोई सेंस भी नहीं है। वो ऑप्शनल होता तो बात अलग है, ओके, नॉट फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव या फिर इसके लिए, ठीक है? यस, ओके। एविडेंस ऑफ पांड्या छोला, क्या आगे भी तो कुछ लिखोगे सुदर्शन, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय एविडेंस ऑफ द पांड्या एंड एविडेंस ऑफ द छोला? हाँ उदित, क्या एक्सप्लेन करूँ वापस? पूरा स्टेटमेंट लिखने का ट्राई करो यार, व्हाट्सएप चैट नहीं है आपका कि आधे अधूरे स्टेटमेंट लिख के शूट कर दिया, राइट? हाँ, देखो उरायर इनका एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर था जो कॉटन ट्रेड के लिए काफ़ी मशहूर था। तो यू कैन नॉट कंसिडर एज अ इंटरनल पॉलिटिकल कैपिटल, तो एक पॉलिटिकल सेंटर आप इसको कंसिडर कर सकते हो। कैपिटल जहाँ पे होती है वहाँ पे आपका राजा का पैलेस होना ज़रूरी है, वहाँ पे आपकी मंत्री परिषद बैठना ज़रूरी है। तो राजा का पैलेस जो है
वो उरायूर में नहीं, कावेरी पट्टनम में है। राजा की मंत्री परिषद कहाँ पे बैठेगी, तो कावेरी पट्टनम में बैठेगी। ओके, यस, सो यू कैन नॉट कंसिडर इट एज अ सेकंड कैपिटल और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कैपिटल के लिए वो आपको एक रिक्विजाइट इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगेगा, वो नहीं था। तो उरायूर वॉज मोर लाइक एन इकोनॉमिक सेंटर, कॉटन सेंटर था, कॉटन ट्रेडिंग के लिए वो फेमस था। ओके, यस, आई होप इट इज क्लियर। एनीथिंग टिल हियर सो फार गाइज, और कोई डाउट? ओके, चलो, I'll move forward. Okay, meanwhile you can keep on typing your doubt. This will be the last topic. Okay, society, पॉलिटी हम लोगों ने देख ली, इकोनॉमी में बस वही है, ट्रेड है, उसके अलावा और कुछ ज़्यादा इनके पास है नहीं। सोसाइटी में हम लोगों को थोड़े बहुत एविडेंसेस मिले हैं, तो अब वो देखेंगे एक एक करके। तो एज फार एज सोसाइटी इज कंसर्न, देन फॉर द फर्स्ट टाइम ब्राह्मणिकल रिलीजन एंड इवन ब्राह्मणास जो है वो साउथ इंडिया में अपीयर होना चालू हो गए थे। संगम लिटरेचर ने हमें इसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन दी है। उनका कहना है कि हम लोगों को वैदिक कल्चर के बारे में पता है। संगम लिटरेचर ने ये भी इन्फॉर्मेशन हमें दे के रखी है कि जो मैरिज के जो टाइज है वो नॉर्थ से साउथ में इंट्रोड्यूस हुए। तो साउथ में पहले मैरिज के टाइज जो है वो नहीं हुआ करते थे, शादी नाम का कंसेप्ट नहीं था। ये नॉर्थ से साउथ में आया हुआ कंसेप्ट है। देयर आफ्टर संगम लिटरेचर ने हमें ये भी इंफॉर्मेशन दे के रखी है कि जो 4 फोल्ड वर्ण सिस्टम जो है नॉर्थ का, वो भी हमको पता है, बट हम उनको फॉलो नहीं करते। उन्होंने अपने 3 टाइप के वर्ण या फिर क्लास दे के रखे हैं। तो उनका कहना है कि साउथ इंडियन सोसाइटी, दैट इज तमिल लैंड जो है वो डिवाइडेड है इन अराशर, वैश्यर एंड देयर आफ्टर वेल्लालार। ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है या क्लासेस है इन द साउथर्न स्टेट या फिर इन द तमिल लैंड। तो यू कैन क्लियरली सी, ओके, कल्चरल एमैलगमेशन जो है वो होना चालू हुआ है, बट वो बहुत इनिशियल स्टेज में है। अभी तक पूरा का पूरा वैदिक ओवरवेल्म्स ऑन द साउथर्न कल्चर जो वो नहीं हुआ है। साउथर्न कल्चर जो वो अभी भी अपना जो अस्तित्व है या फिर जो अपना जो इंडिपेंडेंस है उसको टिकाने की कोशिश कर रहा है। देयर आफ्टर हम लोगों को एक और क्लास के बारे में पता चला है। दैट पर्टिकुलर क्लास इज बेसिकली कडाई सीआर। तो कडाई सीआर जो है वो एग्रीकल्चर ऑपरेशन करने वाली या फिर एग्रीकल्चर में जो मैनुअल लेबर यूज होते थे उनको ये लोग बोला करते थे। तो एग्रीकल्चर में ये लोगों ने स्लेव्स को या फिर मैनुअल लेबर को बहुत ही पहले से यूज करना चालू कर दिया होगा। दिस इज समथिंग दैट वी कंसिडर। और हमने देखा था कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मौर्यन, तो मौर्यंस के टाइम पे हमने ये लाइन सुनी थी कि वन ऑफ द स्ट्राइकिंग डेवलपमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्यन वाज एम्प्लॉयमेंट ऑफ द शूद्रा एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द स्लेव इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो पहले सैक्रेड एक्टिविटी कंसिडर की जाती थी वो उसको मौर्यंस ने ऑर्डिनरी एक्टिविटी में बदल दिया था। एंड यहाँ पे भी हम लोगों को वैसे ही एविडेंसेस जो है वो मिल रहे हैं कि जो स्लेव या फिर यू कैन कंसिडर लोवेस्ट पॉसिबल मैनुअल लेबर जो होंगे, दैट इज कडाइसार, उनको अब एग्रीकल्चर में इन लोगों ने जगह दे के रखी है। देयर आफ्टर फिर ऑब्वियसली इनइक्वालिटीज के बारे में भी इन्होंने बात की है। तो इन्होंने क्लियरली लिख के रखा है कि बड़े बड़े पैलेसेस में बड़े बड़े रिच सेक्शन एंड देयर आफ्टर किंग वाला जो सेक्शन है वो रहता था, वेरएज गरीब लोग जो है ओके वो मड ब्रिक के हाउस में या फिर वैटल डोब के हाउसेस में रहते थे। तो इट शोज दैट कि भाई वहां पे भी ओके दिस इनइक्वालिटीज जो है वो उस टाइम पे थी। देयर आफ्टर फिर नेक्स्ट वन तोल्कापियम जो है उसने हम लोगों को कुछ कुछ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के भी नाम देके रखे हैं विच आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो उमन चट्टू दैट इज बेसिकली सॉल्ट मर्चेंट, कोगल वनिका कॉर्न मर्चेंट, देयर आफ्टर अरुवाई वनिका दैट इज टेक्सटाइल मर्चेंट, पोन वनिका दैट इज गोल्ड मर्चेंट। ये सारे नाम जो है वो हम लोगों को देके रखे हैं। किसने देके रखे हैं? तो तोल्कापियम। तो तोल्कापियम इज अगेन अ बुक, तमिल ग्रामर का बुक है, उसमें हम लोगों को ये नाम मिले हैं विच क्लियरली शोज कि ट्रेडिंग कम्युनिटी जो है वो काफी फ्लरिशिंग कम्युनिटी थी ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एंड देयर आफ्टर फिर इनका जो चीफ गॉड जो है उसको ये लोग मुरुगन बुलाया करते थे। बट अगेन इन्होंने हम लोगों को अर्लीस्ट एविडेंसेस दिए हैं कि इनके जो लोकल गॉड है उनको अब अवतारा कंसिडर करना चालू कर दिया है। ये अवतार वाला जो कंसेप्ट है ये पोस्ट मौर्यन एंड गुप्ता पीरियड में कहीं ना कहीं तो इंडिया में आया हुआ कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो कंसेप्ट जो है ये कंसेप्ट में हम लोगों को यही पता चला है कि आप जो लोकल गॉड है उनको हिंदू डेटीज का या फिर उनको हिंदू गॉड या फिर गॉडेस है। क्या हुआ, बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए? हाँ ठीक है, तो ये जो बेसिकली जो चीज़ जो है ओके सो यस सॉरी तो सब यस तो ये अवतारा वाला जो कंसेप्ट है दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अवतारा वाला कंसेप्ट क्यों है या फिर ये क्यों आया? तो इसमें एक ही थियरी हमारे पास अवेलेबल है एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न कि आपके पास बहुत सारे लोकल लेवल के गॉड है। तो अगर आप आपके गांव में भी जाओगे
तो आपके गांव में आपको एक ग्राम दैवत मिलेगा या फिर आपके एक विलेज का गॉड मिलेगा। तो विलेज के गॉड का नाम ना कुछ भी हो, बट अल्टीमेटली वो पर्टिकुलर गॉड जो है वो किसी तो एक बड़े हिंदू भगवान का एक अवतार है, ये माना जाता है। तो ये जो नोवल कंसेप्ट है, जो इनोवेशन है, जो सिर्फ आपको हिंदू रिलीजन में मिलेगा, दैट इज कंसेप्ट ऑफ अवतारा। ये इंडिया में इसी की वजह से आया बिकॉज जब ब्राह्मणिकल रिलीजन रिसर्जेंट होना चालू हुआ, ब्राह्मणिकल रिलीजन पूरे इंडिया में फैलना चालू हुआ, एंड दिस इज एन आउटसाइड रिलीजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, और द वैदिक रिलीजन। तो उनको इंडिया के हर एक सेक्शन को अपने अंदर लेना था, बट इंडिया में पहले ही हर एक जो लोकल लोग हैं उनका एक भगवान है जो आपको आपके गांव में दिखेगा, राइट। तो दैट्स व्हाई दिस कंसेप्ट ऑफ अवतारा। तो एक आपका जो लोकल डेटी है जिसको आप मानते हो, अगर किसी ने आके बता दिया कि वो अवतार है, किसका है, तो एक बड़े हिंदू भगवान का अवतार है, उसके लिए कुछ स्टोरीज रची जाती है, स्टोरीज लिखी जाती है, जिसको आप माइथोलॉजी बोलते हो। एंड फिर अगर आपने वो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कर लिया, देन लोकल पॉपुलेशन है वो अपने आप अपना भगवान एंड देयर आफ्टर अपना भगवान के साथ अपने आप को भी हिंदू रिलीजन का पार्ट जो वो मानने लग जाते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अवतारा। वो भी हम लोगों को यहाँ पे मिलता है जहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ संगम लिटरेचर इज टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ अवतारा, जिसमें उन्होंने लोकल डेटी जैसे मायन इसको विष्णु, वेंदन जिसको इंद्र, एंड देयर आफ्टर वरुणन, देयर आफ्टर कोरवाई एक्सेट्रा, इसको अलग अलग भगवानों से रिलेट करना चालू कर दिया था। तो दिस इज अगेन अ कंसेप्ट ऑफ द अमेलगमेशन, जहाँ पे रिसर्जन या फिर अश्योरिंग और यू कैन से दैट जहाँ पे एनफोर्सिंग ब्राह्मणिकल रिलीजन जो है उन्होंने जो कंसेप्ट ऑफ अवतारा लाया, उसके वजह से लोकल डेटी एंड लोकल पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली हिंदू रिलीजन में सब्ज्यूम होना चालू हो गई। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द चीफ गॉड, बट बाय एंड लार्ज जो मुरुगन है, मुरुगन रिमेन द बेसिक गॉड ओवर हियर। एंड देयर आफ्टर हम लोगों को यहाँ पे ब्रेवरी के भी एविडेंसेस मिले हैं, दैट इज वीरकाल। तो वीरकाल भी यहाँ पे सोसाइटी में चलती थी कि जब आप ब्रेवरी दिखाओगे एंड ब्रेवरी दिखा के जब आप मरोगे, तो मरने के बाद आपके नाम का एक बड़ा बड़ा पत्थर ये लोग इरेक्ट करके रखे थे, बना के रखते थे। इट क्लियरली शोज कि ब्रेवरी जो है वो सोसाइटी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। और अगर आपको याद रहेगा, यही ब्रेवरी वाला जो एटीट्यूड है अल्टीमेटली अशोका को निकालना था लोगों में से। तो दैट्स व्हाई अशोका ने अपने पॉलिसी ऑफ धम्म में लोगों से बता के भी रखा था या फिर विनती भी की थी कि वैलर जो है, वॉयलेंस जो है, उनको आपको छोड़ना है। वैलर या फिर वॉयलेंस में कोई ग्लोरी नहीं है, ग्लोरी किस में है, तो धम्म घोषा में है, दैट इज पीसफुल रहने में है। और अशोका के इंस्क्रिप्शन आपको कहाँ पे मिलेंगे, देन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका वाले एरिया में भी मिलेंगे। तो ऑब्वियसली सो यहाँ पे अगेन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो एक दूसरे को कोरोबोरेट कर रहा है कि इन्होंने ब्रेवरी स्टोन दैट इज वीरकाल ओके बना के रखे थे, हीरो स्टोन बना के रखे थे। एंड ऑन दी अदर हैंड अशोका जो है ये आउटस्कर्ट ऑफ द एम्पायर में जो लोग रह रहे हैं उनको अपील कर रहा है। और क्या अपील कर रहा है, तो भाई शांत रहिए, ये जो पर्सनल ग्लोरी, पर्सनल वैलर की जो आप बात कर रहे हो उसमें कोई ठीक नहीं रखा है, अब धम्म घोषा की तरफ बेसिकली बढ़िए। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द संगम सोसाइटी। सो आई होप इट इज क्लियर। एंड अगेन अल्टीमेटली जाते जाते फिर ओके टू अवेल दिस पीपीटी एंड देयर आफ्टर क्रक्स मटेरियल ज्वाइन दिस पर्टिकुलर चैनल, आपको वहाँ पे पीपीटी भी मिल जाएगी। एंड देयर आफ्टर क्रक्स मटेरियल जो एनसीईआरटी का आर एस शर्मा का जो क्रक्स मटेरियल है चैप्टर वाइज, वो तो मैं अपडेट कर ही रहा हूँ। एंड टुवर्ड्स द एंड मतलब जब सारे 28 लेक्चर्स जब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद में आई विल अपडेट द पीडीएफ ऑल्सो ओके। तो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइज। अगर अभी कोई आपके डाउट रहेंगे तो नाउ यू कैन लेट मी नो ओके। तो यस, सो वन बाय वन ओके ठीक है। सिंपल एविडेंस ऑफ द पांड्या छोला, ठीक है। एक्सप्लेन अगेन, यू कैन सी इनलैंड इंस्क्रिप्शन ऑफ छोलास पांड्याज। देखो मैंने आपको वही तो अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, इंस्क्रिप्शन ऑफ छोलाज एंड पांड्याज आर देयर, बट वो सेकंड फेज में आएंगे ना, 600 से लेके 1200 के बीच में जब हम जाएंगे सेकंड फेज में तब उनके इंस्क्रिप्शन आए हैं। यहाँ पे उनके कोई इंस्क्रिप्शन हम लोगों को नहीं मिले हैं ओके। यस, सो प्रकृत और संस्कृत संदीपानी अब बहुत पुरानी डिबेट होगी इसके ऊपर, मैंने बहुत सारे वीडियोस में अब एक्सप्लेनेशन दे दिया है। देखो जब एंशियन पास की आप बात कर रहे हो, आपके पास कोई क्लियर कट डेट नहीं होता है कि कौन सी लैंग्वेज पहली आई कौन सी नहीं आई, राइट। तो यू कैन नेवर एट्रीब्यूट कि वन लैंग्वेज इज ओल्डर एज कम्पेयर टू दी अनदर। बट एज फार एज संस्कृत एंड प्रकृत इज कंसर्न, इनके नाम में ही लिखा है प्रकृत इज बेसिकली द नेचुरल लैंग्वेज, तो दिस इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। एंड प्रकृत का इवॉल्व वर्जन होता है संस्कृत। संस्कृत का मतलब ही होता है रिफाइंड लैंग्वेज। तो पहले आपकी नेचुरल लैंग्वेज आएगी जो बेसिकली खड़ी बोली है, क्रूड लैंग्वेज है, बैकवर्ड काइंड ऑफ द लैंग्वेज है, और उसका रिफाइंड वर्जन है संस्कृत, दैट इज रिफाइंड लैंग्वेज।
तो अगर आप मुझे पूछोगे कि संस्कृत एंड प्राकृत में ओल्डेस्ट कौन सी है, तो ऑब्वियसली इट इज प्राकृत। जो सबसे पहले जो टेक्स्ट लिखे गए हैं इंडिया में वो प्राकृत लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं, संस्कृत लैंग्वेज तो बहुत बाद में लिखी गई है। ओके यस, बट अगेन इट्स अ डिबेटेबल मैटर। ओके, हर एक बंदे का अपना अलग ओपिनियन हो सकता है एंड इट इज एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज अलग अलग थियरीज है इसके ऊपर, तो अलग अलग थियरीज के ऊपर अलग अलग डाटा है, अलग अलग डाटा के ऊपर अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स है यहाँ पे। ठीक है, यस ओके। तोलकापियम इज द चेयरपर्सन ऑफ द सेकेंड संगम। यार ये क्या कर रहे हो, समझ नहीं आता मेरे को। जयपाल सिंह, तोलकापियम इज द चेयरपर्सन ऑफ द सेकेंड संगम और उसने एक बुक लिखा, सॉरी तोलकापियार इज द चेयरपर्सन ऑफ द सेकेंड संगम और उसने एक बुक लिखा है दैट इज तोलकापियम। तो सेकेंड संगम में बहुत सारे बुक्स इन्होंने लिखे होंगे बट उसमें से एक ही बुक हम लोगों को मिला है, वो बुक का नाम क्या है, तो बेसिकली तोलकापियम। और वो बुक किसके ऊपर है, तो तमिल ग्रामर के ऊपर है। ओके यस। अरे भाई भगवान आए किसने देखे, फर्स्ट संगम इज अटेंडेड बाय गॉड। अब मैं यहाँ पे आज बैठ के लिखूँ कि भाई मेरी घर में पूजा है और उसमें गणपति का मुझे दर्शन हुआ, 1000 साल बाद वो टेक्स्ट किसी के हाथ में पड़ गया, तो वो बंदा सही मानेगा क्या उसको कि मुझे भगवान का दर्शन हुआ, राइट? सिंपल यार, क्या सवाल पूछ रहे हो। ओके सिंपल देयर आफ्टर। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट, बहुत इजीली समझा दिया। चलो यार थैंक यू सो मच। ठीक है, ये ओल्डर वाला कंसेप्ट जो वो भी मैंने अभी आपको समझा दिया है। हाँ यार देखो, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, चंद्रगुप्त मौर्य जो साउथ में गए थे उसके पीछे एक बड़ा फेमाइन का रीज़न था जो मैंने आपको पहले ही समझाया था। बट अब चंद्रगुप्त मौर्य जब साउथ में आए तो उनके साथ बहुत सारे जैन सेंट भी साउथ में आए। साउथ में उस टाइम पे ट्राइबल पॉलिटी चल रही थी, तो हंटिंग फूड गैदरिंग चल रही थी। अब जैन मॉन्क जो है वो हंटिंग या फिर फूड गैदरिंग वाला मटेरियल तो खाएंगे नहीं, तो उनको एग्रीकल्चर तो करना पड़ेगा ना। तो अगर चंद्रगुप्त मौर्य श्रावण बेलगोला में मर गए अल्टीमेटली, देन अ ब्रांच ऑफ जैन मॉन्क जो है वो यहाँ पे रह गई, यहीं पे रह गई और इन्होंने यहाँ पे आजू बाजू में जैन रिलीजन फैलाने का काम किया। बट जैन रिलीजन फैलाने के साथ साथ इन्होंने अग्रेरियन प्रैक्टिसेस भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की। तो जब आपका एग्रीकल्चर आएगा तो एग्रीकल्चर सरप्लस आएगा, एग्रीकल्चर सरप्लस आएगा तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोफेशन होगी एंड फिर अर्बन किंगडम जो आपके यहाँ पे आएंगे। ओके, आई होप इट इज क्लियर गाइज। ठीक है, यस थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। ठीक है, या चलो गुड। ठीक है, सो विल स्टॉप ओवर हियर देन गाइज। ठीक है, सो दैट विल बी इट।